بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین مجلس، آداب. غالب انسٹیٹیوٹ نئی دہلی کے زیر اہتمام جشن غالب تقریبات کے موقع پر بین الاقوامی سیمینار منشی پریم چند ذہن زمانہ اور آرٹ افتتاحی اجلاس کے بعد یہ آج کا پہلا اجلاس ہے. میں بغیر کسی تمہید کے آج کے اجلاس کے لیے صدارت کے لیے زحمت دوں گا جناب پروفیسر علیم اشرف صاحب کو کہ وہ آئیں. پروفیسر علیم اشرف صاحب. جناب شین کاف نظام صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا مؤدبانہ کہ وہ آئیں اور تشریف رکھیں ڈائز پر. جناب پروفیسر ثروت خان صاحب، ثروت خان صاحبہ سے بھی گزارش کروں کہ وہ بھی آئیں. اور ڈاکٹر جاوید عالم صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. اس اجلاس کے حصہ ڈاکٹر فیضان الحق صاحب بھی ہیں لیکن وہ کسی مجبوری کے تحت نہیں آ سکے. تو یہ ہماری آج کے اجلاس کی کہکشاں ہیں. سب سے پہلے میں زحمت دوں گا ڈاکٹر جاوید عالم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. جناب ڈاکٹر جاوید عالم صاحب. معزز خواتین و حضرات، میرے مقالے کا موضوع ہے پریم چند اور ہندی تنقید. کیونکہ یہ ایک طویل سلسلہ ہے ہندی میں پریم چند شناسی کا، تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ جو ایک بہت نمائندہ ناقدین ہیں ہندی کے، انہی کے خیالات سے اجمالی بحث کی جائے. اور جو اقتباسات ہیں وہ فی الحال میں نے اس لیے حذف کیے ہیں تاکہ ایک مقررہ وقت کے اندر میں اپنی بات مکمل کر سکوں. بعد میں یہ مقالہ جب تحریری شکل میں شائع ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر قارئین کی توجہ اس پہ ہوگی. تو میں بلا کسی تاخیر کے اپنا پیپر شروع کرتا ہوں. پریم چند اردو ہندی کے سب سے معروف و مقبول فنکار ہیں. یہی سبب ہے کہ ان پر دونوں زبانوں میں کثرت سے لکھا گیا ہے. یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ کسی زور لسانی ادیب پر بیک وقت دو زبانوں میں اتنا نہیں لکھا گیا جتنا پریم چند پر لکھا گیا ہے. اردو ہندی کا شاید ہی کوئی اہم ادبی نقاد ایسا ہو جس نے پریم چند کی شخصیت اور ان کے ادب سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار نہ کیا ہو. یہ بھی حقیقت ہے کہ دونوں زبانوں کی ادبی تنقید نے اپنی منفرد و مخصوص علمی، ادبی اور لسانی روایت کے سیاق میں اپنے طور پر اپنا پریم چند تشکیل دیا ہے. پریم چند کی ان دو تشکیلوں کی ماہیت اور ان کے شکل پذیر ہونے کی وجوہات تقابلی مطالعے کا موضوع ہے، لیکن سرِدست میرا موضوع پریم چند اور ہندی تنقید ہے. اس لیے یہ مقالہ ہندی تنقید کی روایت اور حیثیت کے سیاق میں پریم چند کے مقام و مرتبے اور ان کے فکر و فن سے متعلق مختلف تنقیدی نظریات کا مطالعہ پیش کرتا ہے. یہ مقالہ اس سوال سے بھی بحث کرتا ہے کہ کیوں پریم چند آج بھی ہندی تنقید کے لیے معیار اور کسوٹی بنے ہوئے ہیں. ہندی ادب کی تاریخ میں پریم چند کا مقام مرکزی اہمیت کا حامل ہے. وہ پہلے ایسے فنکار ہیں جنہوں نے ادب کو تخیل اور رومانیت کی دنیا سے نکال کر ہندوستانی سماج کی حقیقی اور ٹھوس زمین پر لا کھڑا کیا. پریم چند کا فن اگرچہ ارتقاء کے مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے حقیقت نگاری کی منزل تک پہنچا ہے، تاہم ان کی تخلیقات میں کسان، مزدور، دلت، عورت، متوسط طبقہ اور استحصال زدہ عوام اپنی تمام تر سماجی، معاشی اور نفسیاتی پیچیدگیوں کے ساتھ ظاہر ہوئے ہیں. اس طرح پریم چند محض ایک ادیب اور فنکار نہیں ہے بلکہ ایک سماجی محرک کے طور پر بھی ہمارے سامنے آتے ہیں. رام ولاس شرما کا خیال ہے کہ اگر 1916 سے 1936 تک کی ہندوستانی تاریخ ضائع ہو جائے تو اسے پریم چند کی تخلیقات کی بنیاد پر زیادہ مدلل اور بہتر طریقے سے لکھا جا سکتا ہے.
हिंदी के मार्सी नक्काद प्रकाश चंद्र गुप्त ने भी एक जगह लिखा है कि मुस्तकबिल में हिंदुस्तानी देही समाज की तारीफ प्रेमचंद के नावलों और कहानियों में पढ़ी जाएगी। तनकीद दरअसल किसी भी जबान की रूह होती है जिसके जरिए अदब अपने मकासिद, हुदूद और इम्कानात को पहचानता है। प्रेमचंद के सियाक में हिंदी की अदबी तनकीद के रवैयों का जायजा लेने के लिए हमें हिंदी तनकीद के अहद बहद इर्तिका का इजमाली जायजा लेना होगा, क्योंकि मुख्तलिफ तनकीदी नजरियात ने प्रेमचंद के अदब को मुख्तलिफ जावियों से देखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अहद में हिंदी तनकीद का बाज़ाब्ता आगाज नहीं हुआ था, लेकिन अदब को कौमी व समाजी अवामी जिंदगी से बराह रास्त ताल्लुक रखती है। यही सबब है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रिवायत के बेशतर नाक़िदीन मसलन पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नंदुलारे वाजपेयी और रामविलास शर्मा वगैरह ने प्रेमचंद को हिंदी कथा साहित्य का नुमाइंदा अदीब करार दिया है। शुक्ल के बाद हिंदी तनकीद में मार्क्सी और तरक्की पसंद नजरियात का ज़हूर हुआ। इन नजरियात से वाबस्ता नाक़िदीन ने अदब को तबक़ाती जद्दोजहद और समाजी पस मंज़र में देखा। मार्क्सी नजरिए की रूह से प्रेमचंद किसानों और मजदूरों के अदीब करार पाए। रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह और प्रकाश चंद्र गुप्त जैसे मार्क्सी मुफक्किरीन ने प्रेमचंद को तरक्की पसंद नजरियात का नुमाइंदा फनकार तस्लीम किया, जबकि मार्क्सी दबिस्तान नक़दी से वाबस्ता बाज़ नाक़िदीन ने प्रेमचंद के नजरियाती हुदूद की भी निशानदही की। ताहम फिर भी यह हकीकत है कि तरक्की पसंद तनकीद ने प्रेमचंद को हिंदी अदब के मरकज़ में रखकर उनकी इफ़ाम व तफ़हीम की नई जिहतें और नए ज़ाविये रोशन किए। मार्क्सी नजरिए तनकीद के बाद हिंदी में आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद जैसे नजरियात रुझानात का फ़रोग हासिल हुआ। इन रुझानात से वाबस्ता नाक़दीन मसलन अज्ञे, राम स्वरूप चतुर्वेदी, लक्ष्मीकांत वर्मा और नामवर सिंह वगैरह ने प्रेमचंद के अदब का ज़बान व उसलूब, फनपारे की अंदरूनी साख तो है तो इंसान के बातनी व नफ्सियाती शऊर की रोशनी में मुताला किया। इस बात से अहम नहीं है, बल्कि ज़बान व उसलूब के लिहाज से भी गैर मामूली अहमियत का हामिल है। हिंदी में उत्तराधुनिकतावाद के नजरिए से वाबस्ता नक्कादों ने प्रेमचंद को रिवायती तफ़हीम के दायरों से बाहर निकाला और उनके अदब की किरत के लिए नए और निस्बतन वसी प्यार मुतय्यन किए। मसलन इस नजरिए नक़्द की रूह से प्रेमचंद के अदब में दलित, औरत और समाज के निचले तबकों की दबी कुचली आवाज़ों की निशानदही की गई। प्रेमचंद के अदब में सुनाई देती इन आवाज़ों को उत्तर आधुनिकतावादी आलोचना महरूम और इस्तेसालज़दा तबक़ात के तहीं महज प्रेमचंद की हमदर्दी के तौर पर नहीं देखती, बल्कि मुरोवजा सियासी और समाजी निज़ाम के खिलाफ एक फिक्री व तख्लीक। प्रेमचंद के सियाक में मार्क्सी तनकीद के अपने कुछ हुदूद भी हैं। प्रेमचंद के तख्लीकी शऊर को मार्क्सी नक्काद महज तबक़ाती जद्दोजहद तक महदूद कर देते हैं, जिसके नतीजे में उनके अदब में मौजूद आला इंसानी जज्बात और समाजी व तहजीबी अनासिर पसे पुश्त जा पड़ते हैं। ताहम यह ज़रूर है कि मार्क्सी तनकीद ने प्रेमचंद को नए मयारों और नई कसौटियों पर परखा और उनके फ़न को समाजी व मासी पस मंज़र में समझने की एक ठोस और मुदल्लल बुनियाद फराहम की। समाजियाती तनकीद के नुक्ते नज़र से भी प्रेमचंद खास अहमियत रखते हैं। समाजियाती तनकीद फनपारे को उसके वसी समाजी सियाक में रखकर देखती है और इस सवाल से बहस करती है कि कोई भी फनपारा किस तरह समाजी हालात की अक्कासी करता है और क्यों कर वो मुख्तलिफ समाजी ढांचों, तंजीमों और इदारों से मुतासिर होता है। हिंदी में समाजियाती तनकीद की ओर से किसी भी फनपारे का असल मकसद समाजी मसाइल को पेश करने और उनके हल के लिए आवाज़ बुलंद करना है। इस हैसियत से प्रेमचंद का अदब समाजी मुताले के लिए भी एक वसी बुनियाद फराहम करता है। उनकी तख्लीकात हिंदुस्तानी समाज में मौजूद माशी नाबराबरी, ज़ात पात पर मबनी निज़ाम, ख़ानदानी तंजीम, गाँव और शहर के बाहमी राब्तों और इनफाद पजीर समाजी अक़दार की जिंदा दस्तावेज़ हैं। समाजियाती तनकीद से वाबस्ता मुफक्किरीन मसलन शिवदान सिंह चौहान, मुफ्ती बोध, नामवर सिंह और डॉक्टर नगेंद्र वगैरह ने प्रेमचंद को भारतीय समाज का कथाकार कहा है। गौदान और उससे कबल के कई नावलों मसलन कर्मभूमि और रंगभूमि ने गाँव का समाजी ढांचा, इसमें साहूकार, पुजारी, किसान, मजदूर और जमींदार सब किसी न किसी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक गैर मसावियाना समाजी निज़ाम की शक्ल में हमारे सामने आते हैं। समाजियाती तनकीद की रूह से ये दरअसल नवाबादियाती हिंदुस्तान के देही समाज की हकीकी तस्वीर है। पूरी का इस्तेसाल सिर्फ मासी इस्तेसाल नहीं है, बल्कि समाजी अक़दार और रिवायात से भी ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह प्रेमचंद के यहाँ ज़ात पात पर मबनी निज़ाम की तस्वीरें भी नुमाया तौर पर मौजूद हैं। सदगती, ठाकुर का कुआं और नावलों में कर्मभूमि वगैरह तख्लीकात आला ज़ात के जरिए निचली ज़ात के लोगों के इस्तेसाल की तस्वीर पेश करती हैं। समाजियाती तनकीद से वाबस्ता नाक़दीन का ख्याल है कि प्रेमचंद ने ज़ात पात पर मबनी निज़ाम को महज एक आम मसले के तौर पर नहीं, बल्कि पूरे समाजी निज़ाम की पेचीदगियों और नाहमारियों की शक्ल में पेश किया है। समाजियाती तनकीद के नुक्ते नज़र से निर्मला और सेवा सदन औरतों के मसाइल की पेशकश के लिहाज से अहम है। जहेज़, बेमेल शादी, बेवगी और ख़वातीन की माशी खुदनिसारी जैसे सवाल मज़कूरा नावलों में पूरी शिद्दत के साथ उभरे हैं। समाजियाती तनकीद के मुताबिक प्रेमचंद औरत की ज़ात के कर्ब को समाजी निज़ाम की पैदावार के रूप में देखते हैं।
नाविल गबन में पेश की गई मुतवस्सित तबके की तस्वीर भी समाजियाती मुताले का मौजू रही है। सार्फियत, दिखावे की संस्कृति और अखलाकी कशमकश, ये तमाम अनासिर मुतवस्सित तबके की ज़िंदगी की अलामतें हैं। प्रेमचंद ने मुतवस्सित तबके के अंदरूनी तजादात और उसकी न खत्म होने वाली ख्वाहिशात को बड़े मुअस्सिर अंदाज में पेश किया है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि समाजियाती तनकीद के मुताबिक प्रेमचंद का अदब हिंदुस्तानी समाज की बनावट और उसके दाखिली तजादात को समझने का एक मोतबर वसीला है। हिंदी तनकीद के दीगर दबिस्तानों मसलन नफ्सियाती तनकीद और तानीसी तनकीद ने भी प्रेमचंद के अदब का मुताला किया है। नफ्सियाती तनकीद ने प्रेमचंद के किरदारों की दाखिली कशमकश पर तवज्जो मरकूज की है। धनिया, जालपा, गोबर, घेसू और माधव महज समाजी अलामतें नहीं हैं, बल्कि पेचीदा नफ्सियाती किरदार भी हैं। नफ्सियाती तनकीद से वाबस्ता नक्कादों मसलन अज्ञे, जैनेंद्र कुमार, डॉक्टर इलाचंद्र जोशी और डॉक्टर नागेंद्र का ख्याल है कि प्रेमचंद इंसानी नफ्सियात की बारीक से बारीक परतों को नुमाया करने में कामयाब रहे हैं। तानीसी तनकीद यानी स्त्रीवादी आलोचना ने प्रेमचंद के खातून किरदारों का हस्नो तजिया किया है। बाज़ तानीसियत पसंद नक्कादों मसलन मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, अरुणा गुप्ता और सुधा सिंह वगैरह इन किरदारों का तजिया इस्लाही नुक्ते नज़र से करते हैं, जबकि कई मुफक्किरीन ख़वातीन के महरूमी और उनकी समाजी पसमानदगी और नाबराबरी के तहत प्रेमचंद की सच्ची हमदर्दी की तारीफ करते हैं। प्रेमचंद और दलित आलोचना के माबैन रिश्ता काफ़ी पेचीदा और मुतनाज़ रहा है। हिंदी में एक तरफ जहाँ उन्हें तरक्की पसंद और इंसान दोस्त फनकार के तौर पर अहमियत दी जाती रही है, वहीं दलित आलोचकों ने बहैसियत अदीब प्रेमचंद की इंसान दोस्ती पर सवाल खड़े किए हैं। धर्मवीर और ओम प्रकाश वाल्मीकि की दलील है कि प्रेमचंद ने दलितों के तई हमदर्दी तो जाहिर की है, ताहम वो दलित किरदारों की जिंदगी के दाखिली दर्द व कर्ब और उनके बातिन में पनप रहे बागियाना रुझानात को पूरी तरह गिरफ्त में नहीं ला सके हैं। इसी तरह कफन के मादा और घेसू निज रंगभूमि के सूरदास जैसे किरदारों पर यह इल्जाम लगाया गया कि प्रेमचंद ने उन्हें दकियानूसी, इन्हितात पसंद और काबिल रहम दिखाया है, जबकि दलित चेतना संघर्ष और खुददारी और खुद एतमादी का मुतालबा करती है। ये भी कहा गया कि प्रेमचंद पर गांधीवाद का गहरा असर था, जिसके तहत वो अक्सर मकामात पर कल्ब माहियत की बात करने लगते हैं, जबकि दलित आलोचना अम्बेडकरवादी नजरिए से मुतासिर है और समाजी व इक़्तिदारी निज़ाम की तब्दीली पर जोर देती है। गर्ज के दलित आलोचना प्रेमचंद को रद्द नहीं करती, बल्कि उनकी तख्लीकात में मौजूद दलित मसाइल और किरदारों के ताल्लुक से गैर सेहतमंद अनासिर की निशानदही कर हिंदी अदब में एक ज़्यादा जामे और हकीकत पर मबनी बहस की शुरुआत करती है। इधर समकालीन हिंदी आलोचना ने मुताले प्रेमचंद की नई जिहतें रोशन की हैं। मैनेजर पांडे, कमल किशोर गोयंका, वीर भारत तलवार, पुरुषोत्तम अग्रवाल, अपूर्वानंद, काशीनाथ सिंह, अब्दुल बिस्मिल्ला, डॉक्टर धर्मवीर और सदानंद शाही वगैरह प्रेमचंद को महज एक कथाकार के तौर पर नहीं, बल्कि समाजी मुफक्किर के तौर पर भी देखते हैं। ये आलोचक प्रेमचंद के अदब में मौजूद उन अनासिर की निशानदही कर रहे हैं जो बावजूद हिंदी आलोचना के मुताले व तस्जिए का मौजू नहीं बन सके। समकालीन हिंदी आलोचना प्रेमचंद की मिसालियत पसंद हकीकत निगारी का भी असलियनो जायजा ले रही है। नामवर सिंह और उनके बाद की पीढ़ी ने प्रेमचंद को भारतीय आधुनिकता का नुक्ता आगाज माना है। उनकी कहानियां मसलन कफन और पूछ की रात आज भी ग्लोबलाइजेशन और बाजारवाद के इस दौर में हाशियतदा समाज की जद्दोजहद और उसके मसाइल को समझने का एक जामे और मोतबर वसीला फराहम करते हैं। बतौर मजमू ये कहा जा सकता है कि हिंदी तनकीद और प्रेमचंद का रिश्ता बहुत गहरा और हमाजहती है। प्रेमचंद अदब को समाजी हकीकत पसंदी के एक नई तस्वुर से रोशनास कराया, जबकि हिंदी तनकीद ने उनके अदब को मुख्तलिफ नजरियात और रुझानात की रोशनी में देखा, जिससे हर दौर में प्रेमचंद की तफहीम के नए नए पहलू सामने आए। हिंदी में प्रेमचंद तनकीद के मुताले से ये भी अंदाजा होता है कि मुताले प्रेमचंद का ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। जो मसाइल अहद प्रेमचंद में थे और जिनके खिलाफ वो ताहयात कलमी जिहाद करते रहे, वो आज पहले से भी ज्यादा पेचीदा और खौफनाक शक्लों में मौजूद है। हिंदी में प्रेमचंद पर तनकीदी सरमाए की इस कसरत के बावजूद ये हकीकत है कि उनके शऊर के बहुत से पहलू अभी बाकी हैं जो नाक़दीन की गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। हालांकि प्रेमचंद पर तहरीरों और तसानीफ का सिलसिला अभी जोरों शोर से जारी है, लेकिन बकौल राजेंद्र यादव प्रेमचंद पर काम करने वाले भी अभी अंती गलियों में भटक रहे हैं और अपनी कोताह बीनी के सबब प्रेमचंद का हक अदा करने से कासिर हैं। दरअसल हमारी इज्तिमाई जिंदगी नित नए सवालों से दोचार होने के बावजूद भी बहुत से पुराने मसलों में उलझी हुई है। औरतों के इस्तेसाल का मसला, तशद्दुद का मसला, फिरकावारियत और ज़ात-पात पर मबनी सियासी निज़ाम, ये तमाम मसाइल बर्र-ए-सग़ीर की इज्तिमाई जिंदगी की जीती जागती सूरत हाल में पेवस्त हैं। प्रेमचंद एक मखसूस अहद की पैदावार होने के बावजूद हमारी मुश्तरका तहजीबी अक़दार और इज्तिमाई उसलूब ज़िंदगी के तर्जुमान थे। उनके ख्वाब सबके लिए थे। उनका ज़मीर अपने अहद की मजबूत आवाज़ था, जिसमें मजहब, मिल्लत, फ़िरक़े और ज़बान की बुनियाद पर मन व तू की कोई तफरीक नहीं थी। प्रेमचंद के शऊर और उनके अदब का जायज़ा इन हवालों से भी लिया जाना चाहिए। शुक्रिया। बेहद शुक्रिया। ये थे डॉक्टर जावेद आलम साहब।
جو پریم چند اور اردو ہندی کا جو تنقیدی ہے اس کا جائزہ پیش کر رہے تھے، اس حوالوں سے اپنے نظریات اور دوسرے ناقدین کے حوالے سے گفتگو کی، بہت شکریہ۔ اب میں زحمت دوں گا محترمہ پروفیسر سربت خان صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اپنے مقالہ پیش کریں۔ بہت شکریہ۔ معزز سامعین اعزاز، میرے مقالے کا عنوان ہے پریم چند اور آج کا قاری۔ پریم چند کے فن پر بات کرنے سے پہلے آئیے سب سے پہلے یہ طے کر لیا جائے کہ ہمارا خطاب کن قارئین سے ہے۔ میری نظر میں قارئین کی 4 قسمیں ہیں۔ اولاً وہ قسم جو فن پارے کے ذریعے اپنے ضمیر اور بے حس احساس کو جگائے، جھنجھوڑے، تاکہ فضائے دماغی میں تازہ لہریں اٹھ سکیں، اور پھر اپنی اس تازی فکر و فہم سے خود اپنے اور انسانی زندگی کے لیے قانون اور اخلاق کی شاہراہ متعین کرنے کی طرف گامزن ہو سکے۔ ثانیاً قسم ان قارئین کی ہے جن کا واسطہ ریسرچ میتھڈولوجی سے کہ اصول و ضوابط کی لازمی پاسداری سے ہے، تاکہ فن پارے کے تمام فکری و فنی امور رموز پر تحقیقی و تنقیدی استدلال سے اس کے معیار کو متعین کیا جا سکے۔ اور ثالثاً اور سب سے اہم بھی، بدنام بھی، دشنام بھی، اکرام بھی، قسم ادب کے ناقدین کی ہے۔ وارث علوی ان محترم قارئین کے لیے بڑا دلچسپ جملہ دے گئے ہیں کہ شوہر کے بطن میں عاشق کو زندہ رکھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا نقاد میں قاری کو زندہ رکھنا، انکوٹ۔ اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ شوہر اگر عاشق بنا رہے تو زندگی باغ باغ ورنہ خزاں خزاں، یعنی داعیے خیر سے داعیے شر بننے میں صرف ایک پل سرات شرط ہے تو بچہ ذہن، نظام فکر و عمل اور چشم بینا کی۔ اور چوتھی قسم کے قارئین کا ذکر مقالے کے آخر میں کیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اقسام کے قارئین جو آج کی فضا میں سانس لے رہے ہیں، پریم چند کو کیوں پڑھیں، جبکہ آج ادب نے فکر کی نئی نئی جہتوں تک رسائی حاصل کر کے موجودہ دور کے انسانی تقاضوں چیلنجز کو موضوع بنایا ہے، وہ بھی نئی تکنیک کے ساتھ۔ وہ نئی حقیقت نگاری، نیا سماج، معاشرہ اور حالات کہ جن میں باپ دادا کی پگڑی اگر بیٹے نے اتار بھی دی ہے تو اپنا سر دھڑ سے جوڑنے کے لیے اے آئی نے دوسرا سر لگا کر وجود و شناخت کو برقرار رکھنے کی اس جرأت آمیز حرکت کو بھی جائز قرار دے دیا ہے۔ آج کی زندگی کے سماجیاتی باغ کا یہی سچ ہے، لیکن فانی دنیا کی یہ تکنیک اس وقت دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب بنی نو پر کوئی مصیبت آتی ہے، اب چاہے وہ آسمانی ہو یا انسانی ہو یا انسان کے روپ میں شیطانی، اس وقت انسانی انسان کے کام آتا ہے۔ یعنی اصل معاملہ تو دائرۂ حیات میں طہارت نفس کے باہم نظام اخلاق و تمدن کا طرز فکر و عمل کو صالح اور علیم و بردبار بنانے کا ہے۔ ادب یہیں سے اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ یہ میرا وطن سے کفن تک کے سفر میں پریم چند کے فکشن کے کردار بہتر انسان بننے کے سراغ کی تلاش کرتے نظر آتے ہیں۔ آج کے قاری کو انہی سراغوں کی تلاش کی ازحد ضرورت ہے، اس لیے پریم چند کو پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ آج سائنس یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ کتاب میں درج الفاظ کا جادو انسان پر سب سے زیادہ گہرا اثر ڈالتا ہے۔ دراصل اس ناپائیدار زندگی کا اصل سچ الفاظ ہی کے معنی و مفہوم میں پوشیدہ ہے۔ بلا شبہ الفاظ جامد ہوتے ہیں، لیکن کھرا سونا ہے جن کا سامنا قاری کے جسمانی اعضاء سے ترسیل قوت کی بنا پر ہوتا ہے۔ یعنی لفظ 7%
7% तरसील की क़ुव्वत होती है लफ्ज़ में, जबकि 93% तरसील इंसानी जिस्म के आज़ा की तरफ से होती है। लेकिन का दौर है, राजा की हर चीज़ ब्रांडेड, मुल्क से बाहर की, और आवाम को देसी अशिया के इस्तेमाल के नारे, देसी तिजारती कंपनियों की हालत ख़राब या वजूद ही नदारत। ये उसके बाद उन्होंने एक जगह लिखा है प्रेमचंद ने कि बेकसों का गुस्सा पटाखे की आवाज़ है जिससे बच्चे डर जाते हैं, असर नहीं होता। बुलडोज़र की मैंने जिक्र किया यहाँ पर कि ये इस तरह का जिक्र है इसके अंदर। और फिर दिलो दिमाग जिस तरह से मुतासिर करते हैं, हामिद का जो बचपन है उसमें इसमें मैंने जिक्र किया है कि हामिद जैसे कई बच्चे हैं जो आज भी खिलौनों को तरस रहे हैं। दादियाँ आज भी, काकियाँ दादियाँ जो हैं वो भूखी मर रही हैं और बल्कि वृद्धाश्रमों में पहुंचाई जा रही हैं अच्छे पढ़े लिखे घरानों के बच्चों को। और दादियाँ जो हैं वो कब तक अपने बजट का एडजस्ट करती रहेंगी आज के ज़माने में भी, वगैरह वगैरह। एक बड़ी अजीब नुक्ता उन्होंने पेश किया है राह नजात में, नेकी व बदी। ये एक अजीब बात है कि नेकी में जितनी नफरत होती है बदी में उतनी ही रग़बत। आलिम आलिम को देखकर, साधु साधु को देखकर, शायर शायर को देखकर तो जलता है, मगर जुआरी जुआरी को देखकर, शराबी शराबी को देखकर, चोर चोर को देखकर हमदर्दी जताता है और मदद करता है, वगैरह वगैरह। अब बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। मैं लास्ट में एक वो झींगुर और बुद्धू का जो है वो भी इसमें मैंने जिक्र किया, फक्कड़पन का, दोनों किस तरह से एक दूसरे को करते हैं। एक और तहकीकी पहलू नज़र आया मुझे कि पिसनहारी का कुआं, एक उनका अफसाना है। पिसनहारी जब मैंने डिक्शनरी में देखा तो मुझे पता चला कि आटा पीसने वालियों को पिसनहारी, लेकिन उसमें जो कहानी है उसमें ये पिसनहारी कहाँ से, वो आटा तो नहीं पीसती जो हीरोइन है, वो तो मर जाती हैं और वसीयत करके देती हैं कि ये 2000 रुपये हैं, वो खुदवा देना समाज के लिए। एक ईमानदार को देती हैं, उनका बेटा वो पैसे ले लेता है और अपने बिजनेस में लगा देता है। आखिर वो एक मतलब एक कैसे करके बाप वो कुआं खुदवाए थे। अब पिसनहारी क्या हुआ, तो मैंने नईमा पाशा साहिबा से पूछा, उनकी डिक्शनरी में देखा, तहजीबी और उस तरह की डिक्शनरी है, तो उन्होंने ये मुझे बात बताई कि मुझे नहीं मालूम उस अफसाने में क्या था, लेकिन पिसनहारी जयपुर में एक फूटा खुरा करके एक मोहल्ला है जिसमें चक्की पीसने वाली खवातीन रहा करती थी, और वहाँ से वो हम बुआ आती थी और वो जब चक्की पीसती थी, हमारे यहाँ पहले आटा पीसा जाता था, तो यूँ वो एक कहानी सुनाती थी कि ऐसे ऐसे एक बच्ची है और उसने जो है कुआं बनाने की कोशिश की और वो पिसनहारी उस बच्ची ने कुआं बनवाया था। ये था, उससे मुतासिर होके मुझे लगा कि प्रेमचंद ने ये कहानी पिसनहारी का उस उन्वान से लेकर वो इशारा किया। तो ये एक लोक कहानी है, लोक कहानी, उसको उन्होंने उस तरह से जो है कहानी बनाकर उस तरह से पेश किया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। आखिर में जो चौथी किस्म है, बस ये इतना करिए भैया, पढ़ लेती हूँ। चौथी किस्म है वो किस्म जो मैंने शुरू में अर्ज किया आपसे कि वो क्या है, वो क़ारीन कौन से हैं जिनके कंधों पर मुस्तकबिल के फिक्शन का भार है, यानी आज के लिखने वालों का। इनके लिए मैं क्या कहूँ आखिर, सिर्फ एक कौल उर्दू फिक्शन के महारथी जोगिंदर पाल साहब का मुलाहिजा फरमा लीजिए कि प्रेमचंद अपनी कहानियों को किताब के सफ़ों से ज़िंदगी में बहा ले आते हैं और पढ़ने वाले को गुमान होने लगता है कि वो सचमुच उन्हीं मकामात पर न कहीं आ निकला है जो कुछ पढ़ रहा है, उसे अपनी आंखों से देख रहा है। प्रेमचंद के फन का ये पहलू हमारे कई ऐसे नए लिखने वालों की तवज्जो का बाइस होना चाहिए जो अपनी बेवाक़या कहानियों के खला में लटक कर तकनीकी करतबबाजी को ही कहानी के फन से ताबीर कर लेते हैं। कितना वाज़ेह इशारा है। अफसाना तो अफसाना, हमारे कुछ नॉवेल निगारों का भी यही हाल है। इसलिए लीजिए अपने जहन से काम, टॉपिक पे आ जाइए, जहन से अपने काम कीजिए, अपने ज़माने की बात, और आर्ट बनाने की सही में कोरे कागज़ों को उस वक्त तक रंगते चले जाइए जब तक मीर तक़ी मीर के लखनऊ के बंद कमरे का सा आलम न हो जाए, यानी अपने नक़ाद खुद बन जाइए। शुक्रिया। बेहद शुक्रिया प्रोफेसर सरवत खान साहिबा का, बहुत पुरमग़ज़ अपनी गुफ्तगू से हमें नवाज रही थी। अब मैं हमारे दरमियान बहुत ही मोहतरम शख्सियत तशरीफ़ फरमा है जनाब शीन काफ़ निज़ाम साहब, मैं उनको दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपना मक़ाला पेश करें।
प्रेमचंद के बारे में बहुत सारी बातें होने से पहले दो बातें हैं इसको, क्योंकि मुझे लगा था कि प्रेमचंद पर जो सेमिनार हम इस वक्त कैसे कर रहे हैं, कल उसका बहुत सा जवाब मिला, पर मुझे कई बार लगता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव विद और विदाउट फिक्शन। हम फिक्शन के साथ भी नहीं रह सकते और फिक्शन के बगैर भी नहीं रह सकते, शायद ये होगा। बहुत सारी बातें हो गई, वक्त बहुत कम है, मैं बहुत अपनी बात मुख्तसर में कहने की कोशिश करूँगा। मेरे मकाले का उन्वान है अफसाने का आर्ट और प्रेमचंद, क्योंकि ये तीसरी शक्ल ज़बान और ज़माना ये तो सब हुआ, लेकिन शायद आर्ट पर मैं अपनी बात कहने। प्रेमचंद के बारे में दो तीन बातें पहले वाज़ेह कर दूँ, जो इसमें आगे आएगी उन्हें छोड़ दूँगा उन्हें। पहली बात यह है कि प्रेमचंद ने अदब के अलावा भी बहुत सारे मज़ामीन लिखे। ज़माने में वो उर्दू में लिखते थे और अपने रिसाले हंस में हिंदी में लिखते थे। प्रकाश जी अच्छे तो जानते हैं कि हिंदी के बहुत से मज़ामीन उर्दू में नहीं आए, और जो उनका ट्रांसलेशन जो उर्दू में हुआ है वो बहुत ही बुरा ट्रांसलेशन है, क्योंकि एक वैकेबलरी बदल जाती है। जब मैं प्रेषण कहता हूँ, संप्रेषण कहता हूँ और तहसील कहता हूँ तो बहुत सी बातें बदल जाती हैं। तो यही गलतियाँ खुद प्रेमचंद बहुत अच्छी हिंदी नहीं जानते तो उन्होंने एतराफ़ भी किया। लेकिन उनके अलावा भी प्रेमचंद ने जो अदबी मामलात से बहस की है, मेरा मौजू वो है, और उसके तहत मैं ये गुजारिश करूं कि हंस के अलावा जो उन्होंने लिखा दयानारायण निगम के रिसाले में, वो कहानी के बारे में भी था, लेकिन वो बहुत कम था। इसलिए प्रेमचंद की कहानी के बारे में 3 मज़ामीन हिंदी में मिलते हैं और 2 उपन्यास के बारे में, नावल के बारे में। अगर इन तहरीरों का मुहाकमा और मुहासिबा किया जाए तो इख्तलाफ के बहुत सारे पहलू सामने आएंगे। जाहिर है तजियाती मुताले से मेरा मकसद ये नहीं कि प्रेमचंद के अदबी मज़ामीन जितने मेरे सामने हैं उन सब को बहस करूं, लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि मैंने जो समझा कि उन्होंने क्या मुतीक़ा कायम करने की, अफसाने के या शेरियात क्या कायम करने की उन्होंने अपने तौर पर कोशिश की थी प्रेमचंद ने। क्योंकि प्रेमचंद को हमने पहला अफसाना निगार माना है, खलील आदमी से लेकर फातमी साहब तक सभी ने। लेकिन सवाल ये है कि जब पहला बानी और बरगुज़ीदा लोग जो होते हैं उनका पहला काम ये है कि वो अपने शेरियात भी कायम करें, चाहे तख्लीक से करें चाहे मज़ामीन से करें। प्रेमचंद ने वो भी किया। तो प्रेमचंद ने बताया कि उन्हें शुरू से, अब यहाँ से मैं थोड़ा सा पढ़ दूँ, प्रेमचंद ने बताया है कि उन्हें नावल पढ़ने का शौक़ था जुनून की हद तक। मौलाना शरर, पंडित रत्नाथ तारिक वगैरह वगैरह, और 30 में होश शुरुआत तो वो कई पढ़ चुके थे। लेकिन उनके पढ़ने का शौक़ यह था कि कोई उन्हें रोकता तो बड़े नाराज़ हो जाते। चुनांचे कुछ दिनों के लिए उनके एक मामू घर पे मेहमान हुए थे, और उन्होंने जब उन्हें रोका तो प्रेमचंद ने एक नाटक, एक ड्रामा उन पर लिखा, और उस ड्रामे में उन्होंने अपने मामू के नाकाम इश्क की दास्तान भी लिखी और उनकी जो फजीहत हुई उसका भी बयान किया। और वो नाटक लिख करके उन्होंने अपने मामू के सिरहाने रख दिया, स्कूल चले गए। जब लौटे तो उम्मीद तो बहुत सारी थी कि कुछ जूते पड़ेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन उसके खिलाफ ये हुआ कि मामू वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए। ये तो एक कहानी थी जो प्रेमचंद ने बयान की है उस ड्रामे के लिखने की। मुझे लगता है कि पहला ड्रामा जब प्रेमचंद लिखते हैं ये उनकी पहली तकलीफ हुई, न कहानी हुई न कुछ। तो उनकी पहली तकलीफ कुछ छोटा सा ड्रामा हुआ जो अब अवेलेबल शायद नहीं है, मेरी मालूमात में नहीं है। लेकिन ये सोचने की बात है कि उन्होंने पहली बार ड्रामा क्यों लिखा बजाय कहानी के। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि मामू ने उन्हें टोका और उसकी वजह से वो नाराज होकर के उन्होंने ड्रामा लिखा हो ना, कोई तख्लीकी तहरीक रही होगी कि जिसकी वजह से उन्होंने पहला ड्रामा लिखा। हो सकता है ये सिचुएशन उनके काम आई हो। आगे बहुत सी बात छोड़ने के बाद मैं आगे कौलाद में कहता हूँ कि कहानी समाज से बसारत तक का सफ़र तय करते करते कहानी बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई। मेरे ख्याल में कहानी में और नावल में और अदब में तरक्की कम होती है, तब्दीलियाँ ज़्यादा होती हैं। तो प्रेमचंद के यहाँ जब कहानी समाज से बसारत की तरफ जाती है तो उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई हैं। और ये सब उन्होंने मेरा ख्याल है तालस्ताय, गोरकी, चेखव वगैरह से सीखा होगा, और उन्होंने वहीं से उन्होंने समझ लिया होगा कि जो रिटन कहानी है, जो बसी कहानी है, वो इख्तिसार का तकाजा करती है, और वो कम से कम
लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कहने की कोशिश करते हैं। इनडायरेक्टली प्रेमचंद कारी पर भरोसा करने की तलकीन करते हैं। आखिर में इन बातों से ये वाज़ेह होता है कि प्रेमचंद के नज़दीक हकीकत और आदर्शवाद की आमेज़शी कहानी और नावल की बुनियाद है। अदब तख्लीक है, तबलीग और तरफदारी उसे उसके मनसब से गिरा देती है। अदब यानी फिक्शन में फन बराए फन की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। समाजी, सियासी, मुआशी, मकामी, मुल्की, कौमी, बैनुल-अक़वामी किसी भी मौजू पर अफसाना लिखा जा सकता है, लेकिन उसकी वो अदबी तक होगा जब उसकी फिक्री तकाज़े फनी तकाज़ों की तकमील करें, तभी वो अफसाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद शुक्रिया जनाब शीन काफ निज़ाम साहब का, जो अपनी बेलाग और पुरमग़ज़ गुफ्तगू से हमें जो है मुस्तफ़ीद फरमा रहे थे। अब मक़ाले का ये सिलसिला ख़त्म होता है और सदारती खुतबे के लिए मैं ज़हमत देता हूँ प्रोफेसर अलीम अशरफ साहब को कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार सदारती खुतबे से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। ख़वातीन और हज़रात, आज का जो ये पहला इल्मी इजलास हुआ, इसमें सिर्फ 3 मक़ालात पेश हुए और जहाँ तक टेक्निकल गुफ्तगू की बात है उस पर तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बात करूँगा। वजह उसकी ये है कि यहाँ माशाल्लाह ऐसे ऐसे माहिरीन फ़न तशरीफ़ फरमा है। हमारे डॉक्टर प्रदीप जैन साहब बैठे हैं, सा करीम साहब बैठे हैं, गज़नफ़र साहब बैठे हैं, शाफ़िक़ी भाई साहब बैठे हैं। ये सब लोग अपनी अपनी फ़ील्ड में प्रेमचंद का भरपूर अहाता करेंगे, मुझे इसकी पूरी और कवी उम्मीद है और इनसे हम इस्तिफ़ादा भी करेंगे। लेकिन मैं एक बात यहाँ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि गालिब इंस्टीट्यूट के अरबाब हल्लो अक़्द की खिदमत में मैं तबरीक पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने दिसंबर के इस सरतरीन महीने में गालिब इंस्टीट्यूट के अंदर एक बैनुल-अक़वामी सेमिनार नुमाइश कुतुब, गज़ल, सराई, मुशायरा और गालिब की वापसी जैसे ड्रामे के इनेकाद का सामा किया और ये मौका फ़राहम किया जिससे हम मक़ाला निगार हज़रात की आरा से इस्तिफ़ादा कर सकें, शुअरा के कलाम को सुन सकें और किताबों की नुमाइश के लिए जो मुख्तलिफ़ स्टॉल्स हैं वहाँ जा कर के अपनी जो इल्म व अदब की प्यास है उसे बुझा सकें। इसमें जो पहला मक़ाला हमारे डॉक्टर जावेद आलम साहब ने पढ़ा, उनका सबसे बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने हिंदी की जो आलोचना है, हिंदी की जो तनकीद है, उसको उन्होंने उर्दू में पेश किया और उससे जो है वो कम से कम उर्दू वाले जो हिंदी आलोचना को कम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं उनके लिए बहरहाल एक इस्तिफ़ादे का मौका फ़राहम किया। ये उनकी अच्छी अप्रोच है। ये इस तरह से बैनुल लिसानी और बैन ज़बानी गुफ्तगू भी हमारे यहाँ होनी चाहिए। ये उसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है कि इन्होंने हिंदी आलोचना को भरपूर तरीके से अपने उर्दू मक़ाले का उन्वान बनाया और उसकी अच्छी सैर हासिल उस पर गुफ्तगू की। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इन्होंने इसमें बयान की हैं, जिसमें हमारी तरक्की पसंदी तनकीद, मार्सी तनकीद, समाजी मुताले के जो मसाइल हैं वो, और प्रेमचंद की अवामी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू बहुत की उन्होंने, बहुत सारी बातें बताई। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह के मक़ालात और भी हमारे यहाँ अगर हिंदी के हवाले से या और किसी दूसरे हवाले से हो तो ये एक अच्छी और खुशाइंद बात है। तो मैं डॉक्टर जावेद आलम साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक हिंदी आलोचना के हवाले से प्रेमचंद का मुकाम उसमें जो मुख्तलिफ़
हमारे आलोचकों ने बयान किया है उनको उर्दू का जामा पहनाया है। अच्छी दूसरा मकाला हमारी मोहतरमा प्रोफेसर सरवत खान साहिबा का था कि जो जिनका अंदाज़ बयान और उनके जो गुफ्तगू का तरीक़ा है वो बहुत मुदल्लल और बहुत ही जामे होता है, और उनकी जो मिसालें हैं वो बड़ी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ उन्होंने जो अपने मकाले में मिसालें दी हैं वो बड़ी पायदार हैं, और वो साबित करती हैं कि जो ज़िंदगी के अमली तजर्बात हैं उनको उन्होंने किस तरीके से प्रेमचंद के यहाँ बरता है और उससे मिसालें पेश की हैं। ये भी एक उनका खासा है। और क़ारीन की जो 4 अक़साम उन्होंने बयान की हैं उनमें भी ख़ास तौर से जो समाजियाती बाब में उन्होंने AI के इस्तेमाल का हवाला दिया है, ये बिल्कुल एक नई जहत है। ये हमारे यहाँ आम तौर पर कम से कम हम उर्दू और फ़ारसी वाले या बहुत कम हिंदी वाले तो खैर AI का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग कम इस्तेमाल करते हैं AI का ये लोग। तो ये एक नई जहत है अपने आप में कि हमारी समाजियाती बाब में हम AI का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने मिसाल से उसको साबित भी किया। उनकी ये बात बड़ी मतलब जो उन्होंने 7% अल्फाज की उन्होंने जो मिसाल दी कि 93% का तो असर नहीं होता, लेकिन 7% जो है वो अल्फाज का असर होता है हमारे यहाँ, वो 7% 93% से ज़्यादा है। ये जो उनका ख्याल है इसको मैडम ने बड़े अच्छे तरीके से डेवलप किया अपने मकाले में कि वो 7% अल्फाज क्या है जो हमारे ऊपर असरअंदाज होते हैं और बड़ा पुरतासीर है वो चीज़ जो है इसके लिए। और उन्होंने पेशानहारी से मुताल्लिक़ जो गुफ्तगू की और उसमें उसको लोक कहानी साबित किया। अब ये तहकीक का इशू है कि भाई वो वाकई कहाँ से लोक कहानी है। राजस्थान की उन्होंने मिसाल दी कि राजस्थान में मैंने किसी से कंफर्म किया तो ये एक लोक कहानी की हैसियत रखती है पेशानहारी वाली दास्तान जो है उससे। बहरहाल ज़ाहिर मकाला उनका खासा तवील था, उन्होंने सारा मकाला नहीं पढ़ा और वक्त की तंगी है, ज़ाहिर शाया होगा मकाला तो और तफसील उसकी पता लगेगी। शीनकाफ निज़ाम साहब की भी जो हमारी अफसाने का आर्ट और प्रेमचंद के हवाले से जो उन्होंने दया नारायण निगम साहब का अदब की गर्ज़ व गायत पर जो गुफ्तगू की, अदब की इफ़ादियत पर जो उनका तबसरा है, हकीकत पसंदी में क़ुनूतियत का इस्तेमाल और क़ुनूतियत का असर, जबकि अदब जो है वो क़ुनूतियत और रजाइयत दोनों से पूरा है। कोई एक चीज़ तो होती है, सिर्फ अदब में सिर्फ क़ुनूतियत नहीं होती, रजाइयत भी मौजूद है, दोनों चीज़ें हैं। तो उसमें रजाइयत का पहलू जो है वो ज़रा रहा। फिर उन्होंने जो तसलीस का जिक्र किया सत्यम शिवम सुंदरम, इसका भी उन्होंने बड़ा अच्छा रेफरेंस तलाश किया और अदब में इसको उसका इस्तेमाल अमली तौर से किस तरह से हमारे प्रेमचंद ने किया है ये उन्होंने अपनी गुफ्तगू में साबित किया। और इस जो पहला इजलास है इसकी जो निज़ामत की हमारे डॉक्टर मुस्तफ़र साहब ने, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस पूरे मामलात को साबित किया। देखिए अब मुझे बड़ा बहुत वो था इंतज़ार था कि प्रोफेसर कमर रईस साहब का नाम कहीं नहीं आया और उन्होंने भी प्रेमचंद पर जो है काम किया है, उसका किसी ने उनको प्रोफेसर कमर रईस साहब का, हाँ जाहिर है आएगा, बिल्कुल आएगा, उनका आना ही चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है वो। तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि इस सेशन में पढ़े गए मकालात में प्रोफेसर कमर रईस साहब का भी हवाला शायद प्रेमचंद के रेफरेंस से आएगा, इसलिए कि वो असातिज़ा में थे वहाँ और हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनसे अक्सर कभी कभी जो है उनसी इस्तेफ़ादा करते थे उनकी मजलिसों से। तो वो प्रेमचंद के बारे में बहुत सी बातें किया करते थे। ज़ाहिर है प्रेमचंद पर उनका एक ख़ास एक उनका वो था, स्पेशलाइजेशन भी था और काम भी उन्होंने किया है, किताबें भी उनकी मौजूद हैं। बहरहाल इन सब चीज़ों के बावजूद इस पहले इजलास में जो इतना अर्ली सर्दी के ज़माने में 10 बजे शुरू हुआ और इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ जो है वो अटेंडेंस देख करके बेइंतहा खुशी हुई कि आज भी लोग प्रेमचंद से उतनी ही वाबस्तगी, उतनी ही अक़ीदत, उतने ही वालिहाना इश्क़ रखते हैं कि अपने तमाम मसरूफियात को छोड़ के सुबह 10 साढ़े 10 बजे यहाँ हॉल में तशरीफ़ फरमा है। मैं ख़ास तौर से जो हमारे तशरीफ़ फरमा है उन लोगों का ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मजलिस को, इस इजलास को कामयाब बनाया और हमारे डॉक्टर मुस्तफ़र साहब ने जिस तरीके से काम अंजाम दिया उनका भी शुक्रिया। मैं ज़्यादा बातें ना करके
सोचता ये हूँ कि चूँकि पहले ही हम लोग खासे लेट हो चुके हैं, तो शायद इसके बाद कोई चाय का वक्फा है, उसके बाद फिर एक सेशन है, तो हम थोड़ा सा एक 5 मिनट की इस्तराहत के बाद फिर दोबारा शायद यहाँ जमा होंगे और अगला सेशन होगा। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर से उन लोगों का जिन्होंने मकाला पढ़ा और उनका जिन्होंने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद शुक्रिया जनाब प्रोफेसर अली मशरफ साहब का अपने सदारती खुतबे से हमें मुस्तफ़ीद फरमा रहे थे। अभी 5 मिनट और हम आप हजरात के लेंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं अतहर अंसारी साहब, वो एक पर्चा निकालते हैं सदाए अंसारी, उसका इजरा भी अमल में आएगा जश्न गालिब तकरीबात नंबर। तो मैं मौदबाना गुजारिश करता हूँ जनाब मुदीर अतहर अंसारी साहब से कि वो आए। जनाब प्रोफेसर गजनफर साहब से भी दरख्वास्त करूँ कि वो भी तशरीफ ले आए। प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब, शाफी क़िदवी साहब, जनाब मुश्ताक अहमद साहब और प्रदीप जैन साहब। हाँ, ये गालिब इंस्टीट्यूट की अदबी खिदमात पे है। हबीब सईद साहब इसके माविन मुदीर की हैसियत से शामिल हैं, तो उनसे ही मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो भी तशरीफ ले आए। इसमें थोड़ा तरमीम कर रहा हूँ, जश्न ये गालिब इंस्टीट्यूट की अदबी खिदमात के हवाले से नंबर है। अब चाय का वक्फा है, चाय के बाद इंशाल्लाह फिर दूसरे इजलास की जो है बाकायदा शुरुआत होगी।